Dr. Jagdish Prasad, IFS, CEO, Gujarat Medicinal Plant Board. Our guest of honor, Mr. Jigar Inamdar, Regional Director, ICCR, Senate and Syndicate Member. Our Dean, Faculty of Science, Professor Haribhai Kataria. Head, Department of Botany, Professor NSR Krishnaiya. Head, Department of Environmental Studies, Professor Kauresh Vachrajani. And all other dignitaries and our respected guests of the dais to the launch of national campaign on Amrita for life and the ecological restoration of Bofi Ghaat at MSU बड़ौदा कैंपस। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए वे मंचस्थ उपस्थित डॉक्टर जगदीश प्रसाद को बाल तरु प्रदान करें। और मंचस्थ उपस्थित डॉक्टर शशि कुमार सर को बाल तरु प्रदान करें। बाल तरु प्रदान करने का निवेदन करता हूँ। वो हमारे फैकल्टी के डीन डॉक्टर प्रोफेसर हरिभाई कटारिया को बाल तरु प्रदान करें। प्रोफेसर NSR कृष्णैया को बाल तरु प्रदान करें। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज प्रोफेसर कौरेश वत्सराजनी को बाल तरु प्रदान करें। डॉक्टर Nanduri, Professor Parimal Vyas, the Honorable Vice Chancellor of the Maharaja Sahibra University of Baroda, CEO Medicinal Plant Gujarat State, Dr. Jagdish Prasad, Dr. K. Shashi Kumar, Conservator of Forest, Bharuch, youth icon, Dr. Jigar Inamdar. He is also the regional director, ICCR, Ministry of External Affairs, Government of India. He is also the founder of the Institute of Leadership and Governance. Professor Krishnaiya, Head Department of Botany. Dr. Vachrajani, Head Department of Environment. And Dr. Nagar, he is the superintendent of this botanical garden and the arboretum. And the main who is taking lots of pain for being a wonderful programs. I welcome all the dignitaries on this auspicious day of the, which is known as the Environment Day. We have the prestigious project on National Champion of Amrita for Life, and this is sponsored by National Medicinal Plant Board during the pandemic of this corona. I am really proud to say that our project coordinators have already developed 140 samples out of 2 lakhs, which was for the project. And now we are ready for free distribution and awareness about the Amrita, what we known as
the Gilo or Gado in Gujarat. I hope we will be able to serve the society by providing the plant sampling and creating awareness about its usage. We know that no specific medicine for corona cure, but Gilo is one of the most important plants for boosting immunity system. I wish all success for the program. Simultaneously, we are doing the program for eco restoration of Bhuti Nala, which is started in 2020 by cleaning of Bhuti Nala, which we have further taken ahead by improving the vegetation on the Vishwamitra tributary and removing the maximum possible debris from Bhuti Pass. I am happy to share that the plant that we have grown in strength of 100 meters in the month of January 2021. We have successfully completed 5 months of hard period with no suicide. I congratulate the whole Botanical Garden team, Environmental Studies Department, University Engineer, Department of Architecture for making it possible. The area which we have restored ecologically, we are established to be at the site of experimental site for environmental studies. I take this opportunity to thank the dignitaries for sparing their valuable time and encouraging us for this noble course. I also take this opportunity to thank the Department of Botany and the Botanical Garden, Department of Environmental Studies for organizing such a wonderful program on the environmental field. Thanks one and all. Thank you, sir, for Chief Guest, Dr. Jagdish Prasad, Dr. Jigar Inamdar, our guest of honor, Dr. Shashi Kumar ji, our team, dynamic team, Professor Haribhai Kataria, our head of the Department of Botany, Professor Krishnaya, and Professor Forrest from Department of Environment. And my dear faculty, colleagues, students and scholars. It's really a matter of indeed a great pleasure for me to tell that my team has been working very hard from last 5 months to develop 2 lakh saplings of Gaduchi, that is Phenospora cordifolia. It's a very, very important plant of India which is found all across India. It is distributed all across India and it is known as Amrita. And as it is known as Amrita, it helps in giving us, boosting our immunity, which is the most important part of it. It is having a very good antimicrobial, antibiotic, antiviral properties. And with the number of cases in chikungunya and various viral diseases, including the pandemic, corona which is going on, this is one of the important plants which Government of India is promoting and doing further research, how it can help in building of immunity that we can fight with corona. So with that intention, the Government of India decided that we should develop the number of plants, make people more aware about this plant, that this can benefit the whole society. So for Gujarat state, especially for Baroda district, this duty has been given to us to develop 2 lakh saplings. Our team, especially the project coordinator here, Mr. Roshan Parmar, who is working with his team, has developed 1,40,000 saplings already, sir. And in just 5 months, only 60,000 saplings are there left. I am also happy to tell, sir, that from today onwards we have started distribution of the plant. And though we never thought that the
distribution will start from today itself. The hoardings which have been put up, the public have already started coming to collect the plant. So with that intention, the awareness program has to be done at various districts, various villages of Baroda and in city. That is the main thing behind this program, for which we have developed for creating interest in the children's animation movie and a street drama which will be displayed today, which will be played across different villages, and wherever it is not possible we will show the recording. So that is the basic thing with that this program has been done. Rest of it, sir, we will be able to observe in the rest of the program. Thank you very much for making it, sir. Thank you, sir. To declare the opening of the national campaign of Amrita for Life. Yes. Honorable Vice Chancellor of Srinagar University, Professor Kalmar Yasi, Dean of Faculty of Science, Professor Kataria ji, Head HOD, Department of Botany, Professor Kashmira ji, HOD Department of Environment, Dr. Rajani ji, ICCR Engineer, Head and Director of Leadership Institute at MH University, in Jigar Inamdar ji, Project Head, Dr. Nagar ji, and Guest of Honor, Dr. Shashi Kumar, Conservator of Forest, Bharat ji. I am indeed happy and feel privileged to be part of this event, which is really close and meaningful, and it has been organized on the eve of Environment Day celebration. It is meaningful because the thoughts will be taken and translated into action, and I am sure that this program is not confined to only 1 hour of speech and thought-provoking session, but it will be taken week to week, yielding fruitful results in future, as we are seeing here, that 1,30,000 plants have already been generated of a useful medicinal plant called Garo in Gujarati, Gilor in Hindi, and it is also called Garuti, and in literature, Hindi, it is also called Amrita. Amrita means this drug is so important that it doesn't allow a person to die so easily, because it has property of boosting your immunity, it has property of anti-inflammatory, it has property of anti-toxic, and then many more antipyretic, and that's why it has been widely realized that this medicinal plant is very, very useful in fighting against corona as well during this pandemic. Now, its demand has increased multifold because of this corona pandemic, and in such trying times that we are creating a resource which is so needed by the society at large. So I am thankful to the organizer, and I am also thankful to the National Medicinal Plant Board to initiate such campaign. I really feel honored to declare this event as open. I say it is meaningful because it has the thoughts will be translated into action as that I am seeing here, and it is being done. And then secondly, it is very, very useful for the society. Anything you do, if it is not useful to the society, it is not leading to the eco restoration or natural
development of natural environment, I think such activity, I feel so it is futile. To the extent that we are realizing in the corona time that the climate change and global warming are creating problems, and probably this pandemic is also the side effect of this environmental deterioration. On the eve of Environment Day, I just highlight with heavy heart that it is 50th Environmental Day that we are celebrating this time. And every time we celebrate, there are a lot of messages on the WhatsApp group here and there, and so much so we are allergic to see at it. This much of knowledge, but whether they are reaching to our heart, whether they are educating us to do some action, I doubt. The 20-50 long years reveal that we have not yielded desired result. What is the aim of celebrating World Environment Day? The first, as it means, is to create environmental awareness. And the aim is that environmental awareness should lead to environmental amelioration. Environment should be improved. But what is happening? Whether the environment has truly improved? That is the question. Why it is not improved? To me, it seems it can be improved only when we understand the true meaning of environment and its campaign. We are trying to ameliorate the physical environment. That is our body environment. That is to say, air we breathe, water we drink, food we eat, and in the science language we say 4, 5, 6 spheres. That is atmosphere, lithosphere, your hydrosphere, and biosphere, and all that. But that is all we are talking about our physical environment. But physical environment can be ameliorated without any action. No, answer is big no. So action can be initiated only when we sow the right type of seed in our thought, and it germinate, grow, and develop in a tree and yield fruit. Similarly, thought, if it is not turned off, it is not converted to determination, commitment, feelings, aptitude, it will not translate into action. And that is what is happening. That we are talking lot of things on the Environment Day for an hour or two, and later on, it does not get translated into action. Ladies and gentlemen, one thing is very clear, and until and unless we take care of our activity environment. Activity environment means the activity which impacts our mind, to change our thought process. We will not able to give desired result as far as the physical environmental amelioration is concerned. We are seeing there are a lot of conventions, protocols, acts, rules, plans with regards to environment, biodiversity, and everything. But they are lying mostly in the libraries or official archives. And what is actually translated on ground into schemes and programs. But these acts and rules and conventions are rarely translated into schemes and programs. And therefore, at the community level, the things are not included. I just highlight one glaring example. The UNO has given a beautiful program that is Sustainable Development Goals. The whole department of all countries should focus upon it and should tailor their programs according to achieve these sustainable goals, sustainable goals, and related 173 targets. But what is happening? There are just copies, documents. Here and there, some seminars, workshops are going on, but all the department programs and schemes are implemented as they were priority. So, things will improve slowly, and until and unless we take care of our activity environment, it is very difficult.
So ladies and gentlemen and young people, we expect from you, do something positive, a little bit will help. Each one of us is very, very important as far as the environment is concerned. We should not give sermon to others. We do something whatever we can do at our own age. Paropadesh Kusala Bhatteri. That is the biggest problem of Hindustan. कि हम ज़्यादातर लोग दूसरों को सलाह देते हैं and nobody wants to do anything. So let us start from us in this moment onward. Thank you very much for giving me the opportunity for being a part of this event and to be with you people. Thank you very much. Thank you very much, sir. I also request Dr. Jigar Inamdar to release the brochure of this campaign in Gujarati version. हेलो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। माननीय वाइस चांसलर सर और सभी माननीय डिग्निटरीज डायरेक्टर हैं, इन सबके वक्त की कीमत को ध्यान में रखते हुए मैं सभी का स्वागत करता हूँ और ये चाहूँगा कि जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट क्या है और कैसे है वो हम देखेंगे। दरअसल जनवरी 2020 में जो साइंस फेयर हुआ था उसमें एनवायरमेंट साइंस के स्टूडेंट्स ने एक रिस्टोरेशन का प्रोजेक्ट रखा था और हमारी माननीय आदरणीय चांसलर मैडम ने और वाइस चांसलर सर ने इसे अप्रिशिएट किया था और कभी ये कहा था कि अगर ये आप कर सकते हैं तो ये हमारा काफ़ी अर्से का ये सपना है जो पूरा हो पाएगा। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि डीन सर के डायरेक्शन में और खास करके डॉक्टर नागर और उनकी टीम की मेहनत की वजह से हम जो धरती का रिस्टोरेशन है वो कुछ हद तक कर पाए हैं और आगे करते रहेंगे। और साथ ही हमारी साइंस फैकल्टी के लिए एवं इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट चेंज फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ और डिपार्टमेंट एवं आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट सभी मिलकर यहाँ कुछ काम कर सके, आगे के लिए नए सपने देख सके और नए सपने बच्चों के लिए दे सके। इसके लिए कुछ एरिया को हम एक्सपेरिमेंटल साइट के तौर पे आज चाहते हैं कि सर आप डिक्लेयर करें। तो मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ और खास करके रुद्रेश शर्मा जी और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का, जिनकी वजह से ये बहुत कम समय में करना पॉसिबल हो पा रहा है। तो उनकी टीम का भी मैं खास शुक्रगुजार हूँ। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम उस विस्तार में सर आपको जानकारी देंगे, डीन सर और नागर सर, कि खास प्रकार के किस तरह के ग्रुप से का प्लांटेशन किया गया है और क्या आगे का प्लान है। थैंक यू। Thank you, sir. नमस्कार, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस। आप सबको सबसे पहले तो आज के जो
पर्यावरण कील है एनवायरमेंट से, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत महत्वपूर्ण आज का ये दिन रहेगा हमारे फैकल्टी ऑफ साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी काफ़ी हमको ज़रूरत महसूस हुई और फैकल्टी ऑफ साइंस ने ये काम शुरू किया। आज हमारे साथ सीईओ गुजरात मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी भी उपस्थित है, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके आशीर्वाद से आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और ये शशि कुमार जी जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ कहा जा सकता है। कल जब ये एनवायरमेंट डे की बात कर रही थी तो मैंने कल शाम को मेरी मुलाकात हमारे कुलाधिपति से हुई, तो ये जो भुट्टी नाला है, जैसे अभी हमको वसुधानी साहब ने बताया कि कुलाधिपति बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। हम सब जानते हैं कि यूनिसेफ का भी ये जो प्रोजेक्ट है उसका रिकॉग्निशन मिला है हमें। और ये जो रिस्टोरेशन ऑफ भुट्टी साइट, पैसों की तो कमी नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ, लेकिन हौसलों की कमी है। और ये जो टीम है अरे भाई कटारिया की और वसुधानी जी की, और हमारा बॉटनी डिपार्टमेंट में जो कृष्णैया जी है, तो पूरे जो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। आज मुझे अभी दोपहर में एक अच्छी खबर मिली, तो मुझे लगता है कि मैं ये बात आप सबके साथ में मुझे बताना चाहिए। हम सब धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज के हमारे 4 जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, डॉक्टर बबलू प्रसाद जी, डॉक्टर कारिका, डॉक्टर मंथन जी और डॉक्टर किसानी, इसमें से एक आधे को तो मैं जानता हूँ पर्सनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन सबको प्रोजेक्ट मिला है और मेरे ख्याल से ये बात आगे चलेगी। हमारा मकसद केवल कोई क्लिनिक करिकुलम करके इसको पढ़ा करके एग्जामिनेशन लेना नहीं है। ये जो धरोहर, ये जो रिसोर्सेज सर जयराव गायकवाड़ ने हमको दिया है, ये विश्वविद्यालय मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड रिसर्च को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के, हमारे साथ फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ विभाग जुड़े हुए और फैकल्टी ऑफ साइंस। आने वाले वक्त में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करेंगे तो मैं तो ये भी चाहूँगा कि ये जो एफर्ट हो रही है, बच्चे जो काम करते हैं, इसको कई एकेडमिक करिकुलम में बच्चे जाने साथ उसको इंटीग्रेट करिए आप। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं ऐसा मानता हूँ, कभी मेरे ख्याल से व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने एक ऐसा मैसेज मुझे भेजा था कि क्या हम एक पौधा लगाना कंपलसरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि वो कंपलसरी करना या नहीं करना, इसके ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए, उसको कंपलसरी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ऐसा वातावरण हमको खड़ा करना चाहिए कि हर कोई इस पौधे के बारे में, पर्यावरण के बारे में संवेदनशील बने। क्योंकि जो रिसोर्सेज, जो संसाधन ईश्वर ने हमारे देश को दिया है, मैं मानता हूँ ऐसे बहुत कम देश है। कभी कभी हम इस बात का ख्याल नहीं रख पाते हैं। 365 दिन में और पूरे एक साल में 300 से ज्यादा भी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। मेरे ख्याल से बहुत देरी से हमको सोलर एनर्जी या ऊर्जा की बात आई। जगदीश प्रसाद जी जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे थे, जगदीश प्रसाद जी इसमें एजुकेशन, एनर्जी, वाटर, क्लाइमेट, एनवायरमेंट, ये कुछ बिंदु है जिसको लेकर के मेरी अपेक्षा ये भी रहेगी कि इसको केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से ना देखें, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ कोर्सेज, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट के प्रोग्राम में यहाँ पर उपस्थित हूँ, मेरी अपेक्षा ऐसी है, जैसा हम कहते हैं कि प्रबंधन सबको आना चाहिए, सबको प्रबंधन के बारे में पता होना चाहिए, वित्त या फाइनेंस के बारे में सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ
47,000 स्टूडेंट इस कैंपस में पढ़ते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, कुछ ऐसे मैंने पहले भी कहा है, कुछ ऐसे कोर्सेज आप कर ही रहे, लेकिन हमें फैकल्टी और डिपार्टमेंट से बाहर जाकर के ये हमारे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, उनको हमको इस विषय के बारे में हमें सेंसिटाइज करना चाहिए। दूसरा, मैं हरि भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं सच बता रहा हूँ ये बात, इतना अच्छा बॉटनिकल गार्डन हमारे पास है, हर्बेरियम है, और एम.के. अमीन कॉलेज में भी एक अच्छा बॉटनिकल गार्डन हम डेवलप करने जा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी जितनी भी फैकल्टीज है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कुछ छोटी सी जगह हमारे पास है, तो क्या हम छोटा सा गार्डन वहाँ हमारे पूरा स्टाफ हमारे साथ है, क्या हम डेवलप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और दूसरा, एक और भी एक अपेक्षा है कि बाकी फैकल्टीज के जो बच्चे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जाए या कॉमर्स में जाए, शायद उनको नहीं पता होगा कितना अच्छा बॉटनिकल गार्डन हमारे विश्वविद्यालय में है। तो मैं मानता हूँ कि उनको भी बॉटनिकल गार्डन के बारे में बताया जाए, इसी डिटेल वेबसाइट से हम रखें, और हमारे बच्चों को कम से कम इस बॉटनिकल गार्डन है इसकी विजिट करवाए। ऐसी छोटी मोटी मेरे ख्याल से बात तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन हम यदि इसको असेस करें तो साइंस के बच्चों को पता होगा, लेकिन बाकी जो विद्यार्थी है शायद उनको नहीं पता होगा। कभी कभी हम जब कहते हैं कि यहाँ इतने सारे मेडिसिनल प्लांट के जो रेयर है वो नहीं मिलते, वो हमारे पास, और आप सब मिलकर के, खास करके जो हमारे जो ये गार्डन संभालते हैं, हमारे जो नॉन टीचिंग स्टाफ और गार्डन के जो हमारे जो कर्मचारी है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको रिकॉग्नाइज किया। ऐसा होता है ना कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको कैसे बड़ा करते हैं, इस तरह से ये बच्चे ये इतना मेहनत करते हैं। तो आज का दिन, मैंने कल ही दिन की मीटिंग में एक प्रार्थना की थी कि इस साल हमारी हर फैकल्टी एनवायरनमेंट सेलिब्रेट करे, और मुझे करीब करीब पता लगा है कि हर कोई फैकल्टी छोटा मोटा कार्यक्रम भी कर रही है, और फैकल्टी ऑफ साइंस की जो जिम्मेदारी है, और हरिभाई कटारिया है, कृष्णिया जी है, और बाकी बहुत सारे लोग जो प्रत्यक्ष परोक्ष तौर पे जो इनिशिएटिव है इसको आगे ले जाने के लिए आप मेहनत करते हैं, तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसा अभी शशि कुमार जी ने बताया कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्होंने बहुत अपनी खुशी जाहिर की। तो मैं यहाँ पर जो हमारा पूरा डिपार्टमेंट के जो कलीग्स है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको मोटिवेट करते हैं, प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, लेकिन जो हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल से जो बच्चे आते हैं उनको हम ऐसे और तैयार करें कि आने वाले वक्त में वो पोस्ट ग्रेजुएशन करें, रिसर्च करें। और मैं मानता हूँ कि ये ऐसा विषय है, मैं आप ये अंत में ये कहना चाहूँगा कि एक पर्यावरण या एनवायरनमेंट या एनर्जी एक ऐसे विषय है, मैं आपको बता रहा चाहूँगा कि आने वाले वक्त में इस विषय में एक्सपर्ट की बहुत बड़ी कमी पूरी दुनिया को आने वाली है। तो इसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि कन्वेंशन जो हमारे कोर्सेज है उसके साथ इसमें हम और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, पूरी विभाग के फैकल्टी की टीम साथ में बैठ करके सोचे। और मैं इतना आश्वासन देना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जो भी कोई आपको सहयोग चाहिए वो मिलेगा। मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि कंस्ट्रक्शन डिवीजन ने भी इसको काफ़ी सपोर्ट किया है, तो रुद्रेश भाई और इसकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं मानता हूँ कि विश्वविद्यालय एक टीम की दौर पर काम कर रहा है, और आज एक विभाग का दूसरा विभाग फैकल्टी फैकल्टी संस्थाएं सब मिलकर के, क्योंकि यही मैं सच बताऊँ आपको तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह अमलीकरण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मतलब कोई नया कोई प्रोजेक्ट लेंगे, नया कार्यक्रम, आप जो आप कर रहे हैं ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन का ही एक भाग है। और हम बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत सालों से करके आ रहे हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचती नहीं है, विश्वविद्यालय में लोग नहीं जानते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस बारे में भी हमें सोच करके सबके साथ में हम लेकर के चले। फिर बोला सर हरिभाई कटारिया जो हमारे ये संकाय के डीन है, उनको
धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सबको कि आज आपने, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है भारत के नागरिक होने के नाते, ये जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण के बारे में सोचें, सबको समझाएं। और ये जो गिलोय का डिस्ट्रीब्यूशन है, बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे में सबको लोग यहाँ पर बैठे हैं कोरोना से, तो कोरोनिल और गिलोय गणवती या गणवती या गिलोय गणवती या कोरोनिल, मैं मानता हूँ कि कभी कभी आप जाते हो तो उसकी शॉर्टेज भी मार्केट में हमको फुल हम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करके अपने आप को कोरोना से बचाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा विषय है और आप सबने मिलकर के आज ये जो रिस्टोरेशन का भी जो कार्यक्रम साथ में रखा है, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं मानता हूँ कि आने वाले वक्त में और कुछ ऐसे नए आयाम हरिभाई और उसकी पूरी टीम लेकर के आएगी और ये जो कार्यक्रम है वो आगे उसको हम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। Botany and Environment Medicinal Plant Board CEO Dr. Jyoti Sir। मैं 3 चीज के लिए आप सबको पहले तो कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। एक तो आपका टीम बिल्डिंग जबरदस्त है। हमने जितना भी यूनिवर्सिटी देखें, 4 डिपार्टमेंट एक साथ बैठे हैं, ये पहली बार यहां देखा। इसके लिए सबको मेरी तरफ से अभिनंदन। दूसरा, ये बॉटनी प्रोग्राम के लिए खुद वीसी आए और डीन आए और स्टेट से ऑफिसर को बुलाए, खास करके जो बच्चे की जो आइकन है अपना जिगर भाई को बुलाया। इससे कोई बड़ी हो ही नहीं सकता बॉटनी के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए। और तीसरा, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी की, एक्शन में नहीं उतरते हैं, ऐसे बार बार बोलते हैं। मैं भी पीएचडी हूं और मैं सर्विस में इसके लिए आया, बार बार यही बोलते हैं भाई यूनिवर्सिटी वाला एक्शन में ही उतरते हैं। लेकिन जहां आया एक एक्शन, आपने ऑलरेडी 1.5 लाख गिलोय उगा दिया। दूसरा, मैं यहां आया उसके पहले विश्वामित्री की रिस्टोरेशन काम हो गया। तीसरा, यहां आने के पहले 4 प्रोफेसर की अवार्ड की बात हो रही है और प्रोजेक्ट मिलने का बात हो रही है। इसका मतलब ऑलरेडी तुम लोग एक्शन में है। तो ये तीनों के लिए आपको अभिनंदन देना चाहता हूं। और 3 चीज आया मैं आपको बोलना चाहता हूं। एक, आज अभी हम 2021 में हैं, 31 और 41, इसमें बहुत सारा चांस है जो साइंस बच्चे को, क्योंकि जो डिजास्टर की शब्द आप लोग सुने, बहुत बड़ा डिजास्टर की अटेंड करने के लिए बॉटनी को, एनवायरमेंट को, जियोलॉजी पीपल को बहुत बड़ा चांस मिलने वाले हैं। इसके लिए आज से मौका लीजिए। गिलोय और एक एग्जाम्पल है, एक छोटा सा गिलोय कितना बड़ा कोरोना को हैंडल करने वाले हैं, वैसे एक एक सोल्यूशन आप बच्चे से आने वाले हैं। दूसरा, बीएससी एमएससी स्टूडेंट की इंटर्नशिप प्रोग्राम बहुत सारा यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, बहुत सारा डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। हम जब मैं राजपिपला में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में काम करता था, हम मैका से और दूसरा स्टेट से इंटर्नशिप लेते थे। लेकिन अभी मैं आप सब लोग को बोल रहा हूँ, आपका प्लेसमेंट सेल को बताइए, इंटर्नशिप की अभी बहुत सारा स्कोप है और बहुत सारा रिसर्च की, और रिसर्च की अभी टॉप प्रायोरिटी में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की बहुत सारा प्रोजेक्ट बच्चे से लेने वाले हैं।
तो मैं आप सब प्रोफेसर को विनंती करता हूं, आपकी प्रोजेक्ट की शाख को स्थापन करनी। अभी आपकी टाइम है, आपकी इमीडिएटली आपकी प्रोजेक्ट की टारगेट पे देने का, और 100% आपको मिल जाएगी। लास्ट पॉइंट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। मतलब मुझे लग रहा है आपको कैप्टन ही बहुत बढ़िया मिला है, वीसी साहब जो आपका कैप्टन है ना, बहुत बढ़िया मिला है। आप लोग जीतने वाला टीम में है। कैसे साहब ने एक ही शब्द बोल दिया, बजट की कोई कमी नहीं है। नहीं सुना आप लोग? सही बात है, सिर्फ आइडिया की कमी है और सोचने का कमी है। मैं राजपुरा में छोटा सा रूम में रहता था, तुम्हारा नागर साहब ढूंढ के आ गए मेरे रूम पे आके। यहाँ से जितना भी रोप आया ना, कहां से लेके आए? राजपीपला से लेके आए। तो मैं ये बोल रहा हूं, आपको रोपा चाहिए हो, प्रोजेक्ट चाहिए हो, पैसा चाहिए हो, आदमी चाहिए हो, नॉलेज की चाहिए हो, आइडिया की चाहिए हो, सब कुछ अपना अपना जगह पे है उपलब्ध। सिर्फ आपकी कोच और आपकी लांगड़ी चाहिए, वो ऑलरेडी है आप में। और ये फंक्शन बहुत ऊपर बनाया हम लोग है ना, मद्रासी लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब जो रजनीकांत की मूवी रिलीज होती है ना, इसको सुपर हिट कहते हैं। तो वैसे तुम लोग यार आज रजनीकांत की मूवी बनाई, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो शो बाकी है, तो इसके लिए मैं जल्दी पूरी करता हूँ और आप लोग को वेट करता हूँ। थैंक यू सर, एंड इट वाज अ ग्रेट प्रिविलेज टू सच अ ग्रेट पीपल। थैंक यू। मीठा चली जाती है। सर ने रजनीकांत का एग्जाम्पल देके रजनीकांत की स्टाइल में हम सबको जो मोटिवेट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इनके बाद कुछ भी बोला जाए, इट विल बी अ वाटर ऑन अ स्ट्रीट। सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। वी आर हैविंग रियली डिजर्विंग डिग्निटरीज। जो दोनों मेहमान, मैं इसी सर को मेहमान नहीं मानता हूँ, बाकी के सब तो यजमान ही है, तो जो दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, जगदीश प्रसाद जी और शशि जी, मैं शशि जी से इससे पहले भी मिला हूँ और इसी प्रकार से उनसे उस समय भी इंस्पायर हुआ था, आज भी इंस्पायर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनको सुनना हम सबके लिए जरूरी था, हमने सुना है। बट आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट all the departments, all the students, and we all are waiting for the play by the students. So ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल के लिए बच्चों के लिए किए, जैसे कि उनमें एक उत्साह जागृत। India is the land of the treasure of medicinal plants. Among them, Amrita is a highly valued herb, found mentioned in Ayurveda, Siddha, Unani and homeopathy systems of medicine. Popularly called Giloy, this plant's decoction is a magic formula, antioxidant, antimicrobial, antiviral. बीमारियों को काटता है, तो उसे को प्रस्तुत किया गया है। He is also one of the story writers. घनी बड़ी कहानी जरूरत है। ये पूरा निकाला गया है सर, 500 गज देना और उसके बाद कुछ पत्तियां उन्हीं को उन्होंने 4000 जैसे पौधे प्रोवाइड किए। ढूंढ के आ गए, जो ढूंढे उसको तो सब कुछ मिल। और सर घास भी लगाई है इसमें, जैसे लीली चाय है, फिर हमने सैंडकेस भी लगाई है, जैसे कि हाइड्रोजिन ना हो। हाँ सर, हमें ऑस्ट्रेलिया पौधों के लिए काफी प्रोत्साहन दिया है। अच्छी जगह से करवाया है। ये सर आपको एक व्यू लेना हो, हैव ए एंगल व्यू फ्रॉम हियर, जस्ट बैंड और जिगर भाई थोड़ा झुकना पड़ेगा। सर ठीक है सर। हाँ सर, ये जो एरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, कुछ वैसे ही पड़ा है, कंट्रोल है। ऐसी कंडीशन थी सर, इस कंडीशन को सर ऐसे कन्वर्ट वो जो बात थी बात अच्छी है, एक कॉर्पोरेशन करेगी ना, ये हमारी
शायद एक्चुअली प्री मॉनसून कामगिरी में लोगों को पकड़ के कर रहे हैं सब आदमी सर और इसके नीचे भी हम जल जामुन और करंज उगा रहे हैं जो वाटर लेवल प्लांट पानी મળે और इस तरफ ट्रीज की हम लोगों ने लगाए हैं સર આમાં ઘણી બધી આ ખુલ્લી सर यहाँ करीब करीब सर ये समझ लीजिए 50 साल का कचरा भरा हुआ था सर આગળ બરાબર છે આપણે આગળ કાર્યક્રમ નોર્મલી આપણે છે ને લોકો પાર્કિંગ માટે કરતા હોઈએ हाँ बारी I would like to bring one more thing sir. This also we have developed जो गार्बेज अभी पत्तियां आ रही हैं कंपोस्ट पिट કરીએ છીએ સર बट सर इसमें एक बात कहूँगा सर हरी भाई आपसे प्रोफेसर डीन साहब का सपोर्ट था इट वाज नॉट पॉसिबल अच्छा काम करते तो उसको सपोर्ट मिल ही जाएगा आप ये सर ये कचरा भरा हुआ है